Hello everyone. Today we will discuss about Henry Ford's principle of scientific management, जिसमें आज हम देखेंगे उनकी जो 14 प्रिंसिपल हैं उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है, कैसे गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई है. Henry Ford presented this 14 principle according to their experience and knowledge. Henry Ford presented management principle in his book Industrial and Journal Meeting in 1960. He was a French engineer and industrialist. He presented the principle like this. These are division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to the general interest, remuneration of the personal, centralization, scalar chain, order, equality, stability of personal tenure, initiatives, spirit डी कॉप्स. ये इतने 14 प्रिंसिपल उन्होंने प्रेजेंट किए. अब हम एक एक को डिटेल में समझेंगे कि प्रिंसिपल में एक्चुअली क्या बताया गया है. हेनरी फ्योल ने ये कहा था कि these are only the directive principle. Success of this principle depend upon the sharp sense of the management. If they take the wisdom step, then there is so effective principle. So it is just a direction. उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट किया है कि ये सारे प्रिंसिपल है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए. अब इम्प्लीमेंटेशन कितना शार्पली करना है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है. तो जितना शार्पली वो इसे, जितना विजडमफुली वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे उतने अच्छे उसे उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट मिलेंगे. डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क में फ्योल ने बोला है कि जो भी आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, यू हैव टू अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी. Division of work should be done at a managerial and factory level. It's just not for all the factory level workers only. It's also for the manager who are the skilled, trained, give work according to them, give department according to them. Productivity can increase by optimum use of the production equipment to increase the efficiency of the employee and manager. Specialization is the possible if the one worker or the employee are doing the same activity daily basis, so the improvement is in there. उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उस वर्क के अंदर और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मटेरियल पॉसिबल होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी मैनेजर और एम्प्लॉयज़ की. नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स द पावर टू गिव ऑर्डर. किसी को भी ऑर्डर देने का जो पावर होता है उसे हम अथॉरिटी कहते हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसके लिए ओबीडियंट है, आपको किसको फॉलोअप कर देना है. आपने जो काम किया है, जो मैनेजर ने काम किया, जो एम्प्लॉय ने काम किया है, उसे किससे रिप्रेजेंट करना है कि हमने ये काम कंप्लीट हो गया, ये इस तरह से हमने किया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द two side of a coin. There should be, if there is a responsibility, there should be the authority. क्योंकि अगर आपने किसी को कोई काम करने के लिए कह दिया कि आज आपको इतना प्रोडक्शन करना है, लेकिन अगर उसमें अथॉरिटी नहीं दी गई है तो वो नहीं हो पाएगा. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलती है. तो जितनी अथॉरिटी होनी चाहिए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम्प्लीट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी इनकम्प्लीट है. Discipline means certain kind of rule and code of conduct. Every organization and the firm has some rules and regulation, and they should be followed by the manager, employees, worker who are work there. They all have to follow these rules and regulation. So this is the discipline. What happen when the all are follow these rules and regulation? Optimum use of equipment is possible. Consistency of the activity are very much necessary for the industrial discipline. Help in smooth management. Improve efficiency of the worker. Unity of command. The principle so that the employee should get the order from one superior for
any job or activity. There should be only one superior who order their workers. So the worker are not to be confused who is given the order, उनको किसको फॉलो करना है, क्या काम करना है. अगर ऐसा होता है कोई एक वर्कर है और वहाँ पे 3 मैनेजर, अगर तीनों मैनेजर उस एक ही वर्कर को काम देंगे तो दे आर कन्फ्यूज़ कि मुझे कौन सा काम पहले कंप्लीट करना है. तो सिर्फ एक ही सुपीरियर होना, एक एम्प्लॉय के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए ताकि वो उन्होंने जो भी कमांड दिए गए हैं वो कमांड को वो फॉलो कर सके. एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और डिपार्टमेंट. पूरे डिपार्टमेंट या पूरे कोई एक जॉब के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए जो उसे ऑर्डर देगा. अब इस प्रिंसिपल से क्या होता है, द कन्फ्यूज़न नेवर अराइज अमंग्स द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय आर नॉट टू बी कन्फ्यूज कि किसका ऑर्डर फॉलो करना है, कब तक फॉलो करना है, उसमें वो कन्फ्यूज़ नहीं होते, कन्फ्यूज़न अराइज नहीं होती है. डिसिप्लिन मेंटेन होता है कंपनी के अंदर. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी. हाउ टू डू द वर्क, कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, तो उसके लिए डायरेक्शन दिया जाता है. हेल्प लाइन प्रोवाइड करती है जो भी सुपीरियर अथॉरिटी होती है. देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर एम्प्लॉयज़ ग्रुप और दिस ग्रुप शुड बी डूइंग जॉब फॉर ओनली वन पर्पज़. पूरा जो एक ग्रुप होगा, एम्प्लॉय का जो ग्रुप होगा वो किसी एक सुपीरियर की कमांड और एक सुपीरियर का डायरेक्शन फॉलो करेगी, या तो कोई एक पर्टिकुलर जॉब होगा, उस जॉब के लिए पूरा जो ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का वो उनकी ही डायरेक्शन फॉलो करेगी. तो उससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो अचीवमेंट ऑफ द गोल शुड बी द पॉसिबल. Subordination of the individual interest to the general interest. इन दिस प्रिंसिपल फ्योल ने बताया है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के सामने कुछ नहीं है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो सुपीरियर है कंपेयर टू एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है. और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूरा कोई एक ग्रुप है, पूरे एम्प्लॉय का ग्रुप है या फिर कोई वर्कर का पूरा ग्रुप है, उनका कोई एक इंटरेस्ट है और कोई एक या दो वर्कर अलग है, उनका कोई इंटरेस्ट है, तो जो पूरा ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का उसका इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कंपेयर टू जो एक या जो दो वर्कर का जो इंटरेस्ट है या फिर जो उनका इंटेंशन है या जो चाहते हैं, उससे बेटर कि वो जो पूरा ग्रुप जो चीज़ चाहता है या फिर उसको वो जो ग्रुप बता रहा है कि हमें ये चीज़ें करनी है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखेगा. सो इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय ग्रुप शुड बी कंसिडर एज अ सब्सिडरी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल यूनिट. Company interest superior than the individual interest. Easy achievement of the goal of the business is possible due to this principle. Coordination between the person and department should be the possible. Remuneration of the personnel. Remuneration to the employee of the company should be suitable for the ideal payment of wages, make stronger relationship between the owner and employee. Ideal wage, it means that the efficiency of the worker, जितना वो एफिशिएंट है, जितना वो काम कर रहा है, उसके वर्क के अकॉर्डिंग उससे वेजेस प्रोवाइड करना, वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग उससे वेजेस प्रोवाइड करना, उसके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उससे वेजेस प्रोवाइड करना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो रेम्यूनरेशन गिव अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, उनकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उससे जॉब प्रोवाइड करना. Promotion schemes like bonus, profit sharing, representation in managerial committee should be the implemented for the skilled worker. ये सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बोनस देना है, प्रॉफिट में से शेयरिंग देना है, जो ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर हैं उनके लिए. Centralization and decentralization. There is a two type of organization. There is a difference between in a centralization the power in a center in a one person hand. एक ही इंसान के पास एक के पास ही पूरी पावर और अथॉरिटी होती है. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि वो डेलीगेट कर देते हैं पावर अलग अलग लेवल पे. कुछ पावर बॉटम लेवल को दी जाती है, कुछ मिडिल लेवल को दी जाती है, कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वो डिसीज़न ले सके और उसे इम्प्लीमेंट कर सके. जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है. जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव होता है. तो वो
मैनेजमेंट को सोचता है कि हमारे यहाँ पे कौन सी मेथड इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए या सेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए। और कुछ ऐसा भी होता है, कुछ एक वर्क के लिए, कुछ एक टास्क के लिए सेंट्रलाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं और किसी एक टास्क के लिए डिसेंट्रलाइजेशन मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। As per the size of unit, centralization and decentralization is done, makes successful management। और अगर सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन लिया जाता है तो उससे क्या होता है कि सक्सेसफुली मैनेजमेंट होता है, तो उससे जो कंपनी का जो गोल होता है वो इजीली अचीव हो सकता है। स्केलर चेन, दिस प्रिंसिपल इज़ गिवन बाय द फेल, एंड उन्होंने इसमें ये बताया हुआ है कि किस तरह से ऑर्डर पास किए जाएंगे, कौन किसको ऑर्डर पास करेगा और कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो चेन ऑफ द पावर फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू द बॉटम लेवल ऑफिसर, जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल है कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल है, तो जो टॉप लेवल पे है वो ऑर्डर देगा मिडल लेवल को, मिडल लेवल ऑर्डर देगा बॉटम लेवल को। तो इस तरह से जो चेन होती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। जब इंस्ट्रक्शन देना, जब ऑर्डर पास करना है तो ऊपर से नीचे की ओर आती है। और जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है, इट मीन्स हमें आंसर देना होता है, किसको हम आंसर दे सकते, उस टाइम पे क्या होता है कि वो सामने वाले के प्रति, मतलब बॉटम लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, मिडल लेवल के लिए, मिडल लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा टॉप लेवल के लिए, और टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नमेंट और सोसाइटी के लिए। एम्प्लॉय शुड बी अवेयर ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, यहाँ पे होम हो गया, यहाँ पे आएगा होम। यहाँ पे होम आएगा कि कौन किसके लिए अवेलेबल है। स्केलर चेयर अगर विच मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये कौन किस टॉप से बॉटम पे कौन है और बॉटम से टॉप पे कौन आएगा। Order. The principle is based on the two parameter, raw material management and social arrangement. ऑर्डर का मतलब होता है कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे अरेंज करनी है। तो मटेरियल एंड मैन शुड बी इट्स अप्रोप्रिएट प्लेसेस, तो जो जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जो जैसे कि अगर हम एग्जाम को समझें कि एम्प्लॉयज़ के लिए, तो जो जितना ज़्यादा एम्प्लॉय स्किल्ड है, ट्रेंड है, उसका जिसके अंदर इंटरेस्ट है, वो कौन सा काम अच्छे से कर सकता है, उसे उस डिपार्टमेंट में रखना है। और रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज़ होगा, कौन सा परचेज में कौन सा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा पैकेजिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो सारी रॉ मटेरियल हमें वहाँ पे यूज़ करनी है। किस तरह का रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सुटेबल एम्प्लॉय इन अ सुटेबल प्लेस, and this principle help us to reduce the wastage of the time, man and material, increase the efficiency and productivity of the company, of the worker. Equality, effort should be made to establish the equality in unit between the employer and employee is not to be treated like they are just only are working here, उनकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं, उनको वैल्यू देना है, उनको इम्पोर्टेंस देना, उनको इतना इक्वालिटी देने की जैसे एक एम्प्लॉयर है उसी तरह से एक एम्प्लॉय की भी कंपनी में वैल्यू है। एफर्ट शुड बी मेड टू एस्टैब्लिश द इक्वालिटी इन द यूनिट, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वालिटी रखनी है, सबको मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है काम करने के लिए। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो फेथफुल होते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज होगा, अपने कंपनी के लिए लॉयल होंगे, अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सुपीरियर शुड बी बिहेव अप्रोप्रिएटली एंड यूनिफॉर्मली, जो भी सुपीरियर अथॉरिटी वहाँ पे काम कर रही है, जो भी सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, दे हैव टू बी ट्रीट देयर वर्कर अच्छे से, उन्हें ट्रीट करना है कि जैसे वो यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो दे आर नॉट लाइक कि जस्ट वो काम किया और
हो गया, आप उन्हें कुछ समझो ही ना, एज अ आप उसको मशीन समझो, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू ट्रीट लाइक अ ह्यूमन बींग, दे ऑल्सो द ह्यूमन बींग, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट. इक्वालिटी यू हैव टू गिवन. इफ सम वर्क आर मोर एफिशिएंट, टेक देयर डिसीजंस ऑल्सो. उनकी क्या सोच है, वो क्या अगर उनके माइंड में किसी तरह की कोई डिसीजंस है तो वो ले सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं उनके साथ. तो दे फील प्राउड कि हम यहाँ काम करते हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है. स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल टेन्यूर. Permanent and stable employee are the assets of any business. That is the responsibility of any organization कि उनके जो वर्क टर्नओवर रेशियो है, वर्कर टर्नओवर जो रेशियो है, लेबर टर्नओवर रेशियो है, वो कम होना चाहिए. लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है? लेबर टर्नओवर रेशियो होता है कि आपकी कंपनी में कितने लोग, कितने वर्कर काम कर रहे हैं और कितने वर्कर छोड़ के चले गए हैं. अगर ज़्यादा वर्कर छोड़ के जाएंगे तो लेबर टर्नओवर रेशियो इंक्रीज़ होगा. तो कोई भी एक वर्कर अगर बहुत टाइम से एक ही कंपनी में, या कोई एक एम्प्लॉय बहुत टाइम से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो वहाँ के लिए ट्रेंड हो जाता है, वो आपका स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो उसे काम करने में काफ़ी इजी रहता है और काफ़ी अच्छी तरह से वो काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई एक नया वर्कर या कोई नया एम्प्लॉय अगर कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है. As the employee remain for the long time in any unit, his knowledge of the system result into the more productivity. So there is a responsibility of any organization to reduce the labor turnover ratio. Initiatives. A quality of entrepreneurship is necessary for the industrialists. In the same way, there should be the quality of the intention in employees. Industrialists should provide such atmosphere that initiation may be encouraged. Due to initiation, strength of independent working in any employee develop and it increase their leadership क्वालिटी. उनकी लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, उनके अंदर उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें एंकरेज करना है इनिशिएशन लेने के लिए. स्पिरिट डी क्रॉप्स, ये एक फ्रेंच में लिखा हुआ है प्रिंसिपल. इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस. यूनियन इज़ अ स्ट्रेंथ. उन्होंने बोला कि जितने, उन्होंने कहा है कि जितने भी वर्कर्स हैं,